Good evening, students. We are going to start today lecture number 2 of topic friction. Let me discuss what point to be covered in today's topic. Type of frictions. First, we have to discuss about the type of frictions. Basically, the three types are there, depending upon that material which we are using. Number 1, solid. Very good, and you are very clever. That three types of materials we have to discuss. And static frictions. Static friction is a special type of friction. In case the F net equals to how much? 0. What is F net? The resultant force. The resultant force is equals to 0. This is known as the static frictions. That is, there is a no movement. There is a no movement in the static frictions. Okay, got it? And the third one, the self-adjusting nature of the frictions. I already explained you. The friction is self-adjusting. That is, the friction is directly proportional to the force, normal force. Frictional force is directly proportional to the normal force. If the normal force is increasing, at the same time the frictional force is also going to increase. They are self. And kinetic frictions. Kinetic frictions is just a reverse case of the static frictions. In static frictions, object will be in a rest, and in kinetic frictions, object will be in a motion. It means, in short, what we are saying, F net is not equal to 0. That is, some resultant force will be there, and because of that, objects may be moving from one place to the other place. And factors affecting the frictions. The many factors are there. Very first factors is depending upon the surface area, nature of the material, which kind of material we are using. That is, nature of area, nature, environmental factors also affecting, moisture, whatever the environmental factors also affecting, as well as the shape of the objects, how it will be the shaping of the objects. That's contains will be effects on the frictions. Let me discuss one by one in types of frictions. Which are the types? I already discussed now. Might be you know very well. First one is a solid one. Okay. First one, friction in solid. Second one, friction in liquid, and third one is a gas. Okay, the basic formula of frictions, actually that will be related. The force of friction is directly proportional to the mu. What is mu? Is the coefficient of friction. What is the mu? It is constant. This is known as the coefficient of the frictions. As force increases, the frictions also increases. Okay, जब force बढ़ता है, जब frictions भी बढ़ता है. That is the relations. Okay, now here about the static frictions. Static frictions might be come to know from the name only. आपको नाम से समझ में आएगा. नाम में क्या आ जाए उसके? Static. Static का मतलब क्या है? Rest. Object will be not in a motion. Okay, when the F net, net का मतलब क्या है? तुम्हारा resultant force क्या है? आपका 0 है. कब का force? वो क्या? Static frictions में है ना. You know the laws of motion. काइनेटिक में पता है आपको, है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या लगता है आपको? फोर्स लगता है. करेक्ट है. बट इन द स्टैटिक फ्रिक्शंस, हियर वी आर फाइंडिंग द फोर्स आर देयर. दिस फोर्स आर हियर अप्लाइड फोर्स, एंड हियर द स्टैटिक फ्रिक्शंस. द टू डिफरेंट फोर्स आर हियर, द बोथ हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शंस. दोनों का डायरेक्शंस क्या है? तुम्हारा अपोजिट है ना. डिफरेंट डायरेक्शन है. तो फिर एफ नेट क्या आएगा आपका? एफ नेट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स अप्लाइड प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो आप, बराबर आएगा. तो ये क्या है? दोनों भी इक्वल है. ये क्या हो गए तुम्हारे? दोनों इक्वल. क्योंकि क्या है? फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग. ये बढ़ते गया तो क्या होगा तुम्हारा? वो भी बढ़ेगा. बराबर है. इसलिए क्या बोलेंगे अपन? फोर्स ये बढ़ गया, फोर्स बढ़ेगा. एट द सेम टाइम द फ्रिक्शन आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, बट द रिजल्टेंट विल बी द सेम. दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? हमेशा सेम. और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. तो फिर यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? एफ नेट माइनस, इसका डायरेक्शन इधर प्लस होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा?
माइनस, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने से वैसे क्या होगा? मोशन होगा इसका? देयर इज अ नो मोशन, ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन इन अ रेस्ट। इसे क्या कहोगे आप? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? यस, फ्रिक्शन ऑलवेज इन अ स्पेशल में क्या है, इसमें फ्रिक्शन अभी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? ये मैं चेयर को मैं फोर्स लगा रहा हूँ, चेयर मूव हो रही है यहाँ पे, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा? मेरा फोर्स, अप्लाइड फोर्स मेरा ग्रेटर है, बैलेंस फोर्स से भी मेरा फोर्स क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है क्या? नहीं। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज ये दीवार को पुश कर रहा हूँ, है ना? दीवार को पुश करो, दीवार हट रही है क्या मेरे ताकत से? नहीं। तो फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं मैं, एट द सेम टाइम दैट वॉल इज आल्सो अप्लाइंग द फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर उसका मोशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मोशन नहीं हो रहा है रिजल्टेंट फोर्स में, ऑब्जेक्ट तुम्हारा जगह पे ही है, तो वो क्या है? तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं आपको, और सेम थिंग है ना, एक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, पहले एकदम धीरे फोर्स लगा रहा हूँ, समझो 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन से कुछ फर्क नहीं पड़ा है, 1.1 लगाया, 1.2 लगाया, 1.3 लगाया, 1.4 लगाया, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ मैं। ये एक स्टेज तक है फोर्स हल रहा नहीं, लेकिन एक स्टेज आएगी जहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट तुम्हारा हलेगा। मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूँ, बराबर है? पहले फोर्स बहुत कम था, 1 न्यूटन था, 1.1, 1.2, 1.3, एक स्टेज आया कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा हलने लगा, ऑब्जेक्ट का क्या मोशन होने लगा, है ना? ये फोर्स में फोर्स लगाते जा रहा हो, तो सपोज अभी ये फोर्स भी 10 न्यूटन है, ये भी फोर्स क्या है तुम्हारा? 10 न्यूटन है ना? दोनों बैलेंस है, इसका मतलब स्टैटिक में है ना? ये सेल्फ एडजस्टिंग करने वाला है, ये 9 है तो ये भी क्या होगा? 9। पर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी वहां पर इंटरलॉकिंग जो होगी, ये फोर्स तुम्हारा ग्रेटर होगा। कौन सा? ये फोर्स तुम्हारा अप्लाइड फोर्स क्या है? इफ सपोज अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस पे के जो ये है क्या होते हैं? नीचे के सरफेस जो होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है, वैल्यूज होते हैं, उससे तुम्हारा फोर्स ग्रेटर होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग टू इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोशन पे आएगा, बराबर है? कब? ये अप्लाइड फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये रिजल्टेंट फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, एक लास्ट उसकी एक लिमिट होगी, एक जब अप्लाई फोर्स कर रहे हैं आप, है ना? जैसे कि आपको कुछ बोला है बच्चों को, आप किसी को बोला है ये चेयर आपको मूव करना है ना? सपोज चेयर मूव करना है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पहले लगा रहा हूँ, फोर्स मूव नहीं, और थोड़ा फोर्स बढ़ा है, मूव नहीं हो रही, और फोर्स बढ़ा है, मूव नहीं हो रही, पर एक स्टेज ऐसी है कि चेयर थोड़ी सी हलने, वाइब्रेट होने लगी, और फिर बाद में मूव होने लगी। जब लिमिट उसकी खत्म हो जाएंगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब? जब आप फोर्स अप्लाई करें, जब लास्ट मोमेंट में वो हलने को आएगा, जब उसे क्या कहोगे अपन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसकी लिमिट खत्म हो गई, उसे क्या करना है? हाँ, जब दोनों सेम है, जब तक दोनों का मोशन नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है आपका? 0 है, देन इट विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शंस। बट इट द लास्ट मोमेंट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, if you are increasing the applied force, and because of that applied force just object is try to move, जब आपका ऑब्जेक्ट एक लिमिट क्रॉस कर दिया उसने, तो जब थोड़ा सा मूव होना है, उसका जो लास्ट जो कंडीशन है मूव होने के पहले की, उसे क्या है? लिमिट खत्म हो गई, है ना? तो उसे क्या करते हैं अपन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब कहोगे आप उसे? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिट उसकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी लिमिट खत्म हो गई। जब लिमिट खत्म हो गई, जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोशन में आ जाएगा। समझ में आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब समझ में आ गया? लिमिट फ्रिक्शन में लास्ट फोर्स जहां के ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में अब तक नहीं आया है, मोशन में ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं आपको, सपोज एक ट्रक है, एग्जांपल के लिए एक इमेजिन करो, एक ट्रक है, ट्रक के लिए क्या कर रहे हैं? एक आदमी ने पुश करा ट्रक को, ट्रक हल रहा है क्या? नहीं हल रहा है। 2 आदमी पुश कर रहे हैं, ट्रक हल रहा है क्या? नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ते गए, तो फिर एक स्टेज आएगी जब तुम्हारा थोड़ा सा ट्रक हलने लगेगा, है ना? जब कितने पर्सन आए अप्लाई करने के लिए फोर्स के लिए, जहां पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में ट्रक हल रहा, वो लिमिट, लास्ट लिमिट है क्या तुम्हारी? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके पहले की। सपोज 10 लोगों से ट्रक हलता है, तो 9 लोग फोर्स लगा रहे, तो 9 क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझे? 9 लोगों ने फोर्स लगाया, लेकिन ट्रक हलाया क्या वहां पर? नहीं हलाया। 10वां आदमी जब आ रहा है, जो उन्हें फोर्स लगा रहा है, उसके वजह से थोड़ा ट्रक तुम्हारा मूवमेंट में आ रहा है, तो उसकी लिमिट खत्म हो गई, समझो। तो लास्ट लिमिट क्या थी ट्रक की? 9 पीपल का फोर्स, है ना? तो वो है तुम्हारा, समझे? उसके वो 9 पीपल एंड लिमिट होगी उसकी, उससे ज्यादा फोर्स लगे तो गाड़ी तुम्हारी क्या होगी? मूवमेंट में आएगी। मूवमेंट में आई, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। समझ में आया क्या? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब एफ नेट तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, जब क्या है तुम्हारा? वो काइनेटिक फ्रिक्शन में जाएगा। ओके, गॉट इट? देखिए, तो यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, इसका नेचर ही कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। मैंने बताया, मैंने आपको, है ना? पहले
क्या फॉर्मूला है? F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। जितना तुम फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन लगाओगे, उतना ऑटोमेटिक वो भी बढ़ते जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, जब आपका ट्रक था, एक आदमी फोर्स लगा रहा, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है? एक ही आदमी का लगेगा। दो आदमी फोर्स लगा रहे, फ्रिक्शनल फोर्स भी दो ही आदमी का लगेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा सेल्फ एडजस्टिंग। इसमें रेशियो जो है F/N, ये क्या है तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट है। ये क्या रेशियो क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? म्यू क्या कहते हैं अपन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की यूनिट कोई है क्या? नहीं, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें यूनिट है क्या कोई? इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। म्यू इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, या नोन एज द कांस्टेंट। इसे क्या कहोगे आप? कांस्टेंट वैल्यू है। म्यू क्या है तुम्हारी? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, और उसमें जो एरिया ऑफ कांटेक्ट, उसके अंदर के इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है ना। म्यू डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। फोर्स जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे फोर्स फ्रिक्शन भी तुम्हारा एडजस्ट कर ले रहा है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे बताया मैंने, एक आदमी का फोर्स लगा तो फ्रिक्शन भी वो एक ही लगा रहा है। आप लोग फ्रिक्शन काउंट करने लगाते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स पूछते हैं, कैसे एग्जांपल पूछते बताता मैं। सपोज देखो, एक ऑब्जेक्ट है, लेट, अब कैसे एग्जांपल पूछते हैं। सपोज द पर्सन इज अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम 3 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स, ये क्या है तुम्हारा? अप्लाइड फोर्स। ओके, द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ मोशन, ऑब्जेक्ट फिर भी तुम्हारा मोशन में नहीं आया। देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इन दैट केस। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? वेरी गुड, ऐसा है। तो अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन है, और जब आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं आ रहा है, जब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा आपका? 3, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका अपोजिट। जब ये 1 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन। दे आर द सेम व्हेन दे आर नॉट इन अ मोशन। जब मोशन में नहीं है, जब तुम्हारा उसका स्टैटिक, जितना अप्लाइड फोर्स है, उस फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। गॉट इट? समझ में आ गया? इसलिए क्या कहते हैं अपन इसके? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसे इसलिए क्या कहते हैं अपन? द फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? खुद को वो एडजस्ट कर लेता है। द नेक्स्ट वन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन की बातें बताया था मैंने आपको, बराबर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा है? उसकी लास्ट लिमिट, उसकी लास्ट यानी क्या टेंडेंसी। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, बराबर है। देखो, तो ये आप फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन सा तुम्हारा? अप्लाइड फोर्स है, और ये क्या है तुम्हारे यहां से अप्लाई कर रहा है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है। आप लिमिटिंग फोर्स क्या है? बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। तो ये दोनों भी क्या है तुम्हारे? एक टेबल है। पहले आप क्या करें? लिमिटिंग फोर्स, इफ यू आर कंटिन्यूसली यू आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स। अब पहले क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स तुम्हारा 1 न्यूटन था, फ्रिक्शनल भी क्या था तो आपका 1 न्यूटन था। फिर सपोज ये 2 न्यूटन हुआ, ये भी 2 न्यूटन हुआ, ये 3 न्यूटन हुआ, ये भी 3 न्यूटन हुआ, ये 10 तक सपोज क्या होगा तुम्हारा? ये एडजस्ट होते गए। लेट मी कंसीडर, ये भी 10 न्यूटन जब फोर्स हुआ, ये भी 10 न्यूटन हुआ, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है। तब तक 10 तक। अभी 10 के बाद में समझो आप फिर अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, 11 न्यूटन कर रहे हो आप। जब 11 न्यूटन कर रहे हो, जब क्या हो रहा है? आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड टू मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्लाइडली जा रहा है ना। तो 11 को नहीं कहोगे आप किसे कहोगे? आपको 10 को कहेंगे। 10 को क्या कहेंगे? उसकी लास्ट लिमिट क्या थी उसकी? 10 तक यह ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में नहीं आया। 10 से ज्यादा जब फोर्स लगा रहे हैं आप, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में आ रहा है, समझे। 10 तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट मोशन में आया क्या? नहीं। द लास्ट मोमेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन ऑब्जेक्ट विल बी इन अ मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से उसकी लिमिट क्रॉस हो गई आपकी, जब क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में आएगा। जब मोशन में आने की पहले की स्टेज वो कौन सी है तुम्हारी? लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझे। किसी की लिमिट यानी क्या? बाउंड्री। लिमिट का मतलब क्या है तुम्हारा? बाउंड्री लास्ट स्टेज उसकी एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या है उसकी? जब वो तुम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव नहीं हो रहा है। वो क्या? एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि उसकी लिमिट, है ना। आप भी कभी कभी बोलते हैं, कोई आपको पेरेंट्स कोई गुस्सा करते हैं, कोई झगड़ा होते हैं, अभी मेरी लिमिट खत्म हो गई, बोलते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आपकी एक्सट्रीम वैल्यू, इसकी आपकी लिमिट अलग है। चलो, तो उसी तरह से क्या है? इसकी भी लिमिट, हर एक ये लिमिट भी डिपेंड किस पे करती है? तुम्हारी सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, है ना। जैसे इन्होंने बताया हर एक लिमिट अलग होती है, तो यहां पे भी सबकी लिमिट अलग होती है। लिमिट किस पे डिपेंड करेगी? जैसे पर्सन टू पर्सन, इस पे मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मटेरियल कौन सा है? कौन बोल रहा है? जैसे कि आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं, इसके पीछे सरफेस कैसा है? डिपेंडिंग अपॉन सरफेस आल्सो।
लिमिट किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस बहुत इसमें इंटरलॉकिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सरफेस बहुत स्मूथ होगा तो फोर्स भी बहुत कम लगा तो भी ऑब्जेक्ट तो फिर आपका कभी कभी मूव हो सकता है। करेक्ट है कि नहीं? लिमिट का मतलब समझ में आया? इट्स अ लास्ट बाउंड्री, एट दैट स्टेज ऑब्जेक्ट इज जस्ट ट्राई टू मूव। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, मूव होने के कगार पे है। मूव हो रहा है क्या, इट इज नॉट इन मोशन बट इट इज लास्ट स्टेज व्हेन यू आर अप्लाइंग, इफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, ये कंडीशन पे क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा just slide to move, that condition, that applied force is known as limiting friction। उसे क्या कहोगे आप, limiting frictions, है ना, जो कंडीशन पे जस्ट ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्लाइड टू मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? मूव तो नहीं हो रहा है लेकिन मूव उसके बाद में तुम्हें थोड़ा भी फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, मोशन में आ जाएगा। समझ में आ गया? उसकी लास्ट बाउंड्री, लास्ट टेंडेंसी क्या है तुम्हारी, लिमिट। देखिए अभी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी काइनेटिक के बाद में क्या हो गया, आपने पहले फोर्स अप्लाई किया था स्टैटिक को, ऑब्जेक्ट मूव हुआ क्या, नहीं हुआ। अब देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट को, है ना, यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स एंड हियर अपोजिंग फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिसन हियर, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स क्या है आपका, सपोज ग्रेटर है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, जब क्या होगा फिर रिजल्टेंट एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो होगा क्या, फिर नहीं होगा, क्योंकि क्या है कुछ तो वैल्यूज आएगी, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा किधर होगा, तुम्हारे टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोशन आएगा, बराबर है, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, जहां पे फोर्स ज्यादा है, ग्रेटर फोर्स हो गया तो वहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव हो जाएगा। एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स, एफ नेट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, एफ नेट इक्वल्स टू एफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स प्लस एफ स्टैटिक फोर्स, है ना। तो ये क्या है, अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट जो है उसे क्या कहोगे आप, एफ नेट। करेक्ट है? एफ नेट का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। जब रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब कुछ तो भी फोर्स आ रहा है आपका, रिजल्टेंट कुछ तो भी आ रहा है, कुछ तो भी आ रहा है, इसका मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट विल बी इन अ मोशन। समझे? ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, इन अ मोशन में आ रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, और वो स्टेज को क्या कहने का आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझे? जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में आ रहा है उसे क्या कहना है, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझा, है ना। तो यहाँ पे क्या, अप्लाइड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, अप्लाइड फोर्स जीरो है क्या आपका, नहीं है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा, अभी जिसके मैं चेयर को फोर्स लगा रहा हूँ, चेयर क्या हो रही है तुम्हारी, अभी यहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे मैं उसको पुल कर रहा हूँ तो चेयर मूव हो रही है, मूव हो रही है, जगह छोड़ रही है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो वो फोर्स क्या है तुम्हारा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझे? तो एक्चुअली फिर तुम्हारा समझ में आया होगा इसमें, इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है, ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। एक बार आप ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगाने को थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार ऑब्जेक्ट मोशन में आए तो अपन उसको घसरने को टाइम इजी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऐसे बोल सकते काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। समझे? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। और एक फ्रिक्शन देखना है अपने को, वहां पे जैसे कि अभी यहाँ पे स्लाइडिंग दिया, स्लाइड इसके टाइप, काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप है। काइनेटिक के टाइप कितने हैं, दो, एक स्लाइडिंग और दूसरा रोलिंग। स्लाइड का मतलब क्या है, घसरना। अब ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अपने फोर्स लगाए हैं, तो ये फोर्स लगाया आपने, है ना, तो यहाँ पे आपने इधर फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है तुम्हारा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। पर वो टाइम पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तुम्हारा घसरने लगा। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, घसरगुंडी कहते हैं ना, स्लाइड्स करते हैं आप घसरगुंडी पे, है? तो वहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा, इसमें इसका मतलब तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा सपोज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, स्लाइड हो रहा है, घसर रहा है ना, तो उसकी पोजीशन चेंज, वो एज इट इज घसर रहा है, तो उसे क्या करो आप, स्लाइडिंग, स्लाइड करना है यानी घसरना।
ऑब्जेक्ट घस रहा, सरफेस पे तो घस रहा है लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है, उसे क्या हो गया, स्लाइडिंग, है ना, स्लाइडिंग। और उसका जो कोएफिशिएंट है उसे बोलते स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसका कोएफिशिएंट क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, समझे क्या? जिसके अप्लाइड फोर्स, तुम्हारे अप्लाइड फोर्स के ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या स्लाइड हो रहा है, यहाँ पे घसर रहा है ना। तो आप स्लाइडर्स पे देखते हो, स्लाइडर्स पे कौन से फोर्स होते हैं, आप क्यों घसरते हो स्लाइडर्स पे, क्यों घसरते हो आप, स्लाइडिंग की वजह से घसरते हो, क्योंकि क्या है यहाँ पे फोर्स कौन सा है तुम्हारा, ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी नीचे तुम्हारे नीचे पुल करता है ना। तो इस पे क्या है, सरफेस क्या है तुम्हारे यहाँ पे, उसका रफ सरफेस आपको रोकने की कोशिश करता है, बराबर है कि नहीं, रफ सरफेस क्या करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है। पर जब तुम्हारा वो स्लाइड्स बहुत स्लिपरी होगी, चिकनी होगी, तो क्या हो जाएगा, आप सीधे से निकल जाओगे। गॉट इट, समझ में आ गया, है ना। आप देखेंगे स्लाइडर्स पे कभी कभी इमीडिएटली अपन निकल जाते हैं क्या, नहीं, तो क्या करते, स्लाइडर्स का स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होने के लिए अपन पहले हाथ पकड़े तो निकलते क्या, नहीं निकलते, क्यों, हाथ से अपना क्या स्लाइड फ्रिक्शन बढ़ गया है। जब अपन हाथ छोड़ दिए, है ना, जिसका मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट अपन ने कम कर दिया है ना। जब थोड़ा सा तुम स्लाइडिस, थोड़ा सा तुम खुद की बॉडी को थोड़ा पुश कर दिए, थोड़ी बॉडी पुश कर दिए, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बॉडी को क्या कर दिया, अपने थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन बना ले। तो फिर जब आप धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, थोड़ी स्पीड बढ़ते 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 आगे तक निकल जाओगे, है ना। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, जैसी बॉडी तुम्हारी एज इट इज बॉडी मूव हो रही है आपकी, उसे क्या कहना है आपको, स्लाइडिंग, घसरना है, समझे, स्लाइडिंग। और अभी कुछ होते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, एफ नेट यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट गोइंग टू डिस्प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पहले यहाँ था, तो अभी बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद में ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ से वहां तक गया है, इसका मतलब स्लाइड हो गया है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, इसका मतलब एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, पर अभी आपका स्लाइड हुआ है। अभी उसके बाद में देखिए और क्या है तुम्हारा, रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे रोल हो रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, एक आधा सेल है, तुम स्लाइड रखे, ये पेन है, पेन क्या है, रोल हो रही है, गोल गोल घूम रही है, घसर रही क्या है पेन, नहीं, ये क्या है, रोल हो रही है, रोल है ना, इसमें स्लाइड हो रहा है ना, क्या जैसे कोई ऑब्जेक्ट निकल रहा है तुम्हारा, आगे जा रहा है ना, स्लाइडर्स था, स्लाइडर पे आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसे कैसे गया, तो उसे क्या करोगे आप, स्लाइडर। हाँ, ऐसा आप जो पेन करे वो क्या हुआ, रोल हो गया, है ना। रोलर आपने सुना होगा, जो आप दबाने वाला होता है रोलर, तो क्या करता है, वो गोल 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 घूमते रहता है टायर, तो वो क्या करता है तुम्हारा, वो उसको बोलते अपन रोलर। रोलर इज अगेन इजियर कॉन्सेप्ट देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे भी इजी रोल होना क्या है और आसान है। आपको शायद पता होगा, कभी आपको बोलते हो शायद कोई अब शायद अभी फिलहाल मेरे ख्याल से नहीं पता होगा आपको, एनसीसी वगैरह क्या है क्या नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग में वगैरह जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो आर्मी के मेंबर्स जो है, जब कुछ भी मार आता है तो खुद को बॉडी को क्या करो बोलते, रोल करो बोलते हो, कि उसे मार कम लगे, है ना, बिकॉज ऑफ उससे क्या इंजरी क्या होगी, तुम्हारी रोलिंग करे तो इंजरी क्या होगी आपको, कम होगी, है ना, क्योंकि क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होगा तुम्हारा, रोलिंग फ्रिक्शन इज अगेन लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, इसलिए गाड़ी के टायर कैसे होते हैं अपने, रोल होते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन क्या होगा तुम्हारा, कम हो गया, रोलिंग में क्या होगा, फ्रिक्शन सबसे कम हो गया। तो यहाँ पे अपन फ्रिक्शन का अपन देखे होंगे, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में है तुम्हारा, स्टैटिक में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, बराबर है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में है, स्टैटिक, उसके बाद में उससे कम फ्रिक्शन किस में आया, काइनेटिक में, है ना। काइनेटिक में दो टाइप से, स्लाइडिंग और रोलिंग, है ना। तो उसके बाद में क्या है तुम्हारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद में सबसे कम फ्रिक्शन किसमें आपका, रोलिंग में। रोलिंग में फ्रिक्शन क्या हो तुम्हारा, कम, इसे क्या कहते हैं अपन, एफ इक्वल्स टू म्यू रोल और तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू आर। म्यू आर क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, है ना, म्यू आर क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या है, सेम फॉर्मूला, एफ इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन और तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और तो यहाँ पे आप जब कंपैरिजन करोगे आप, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, म्यू आर, म्यू फ्रैक्शंस का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का म्यू कांस्टेंट, है ना, म्यू क्या है तुम्हारा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस, म्यू एंड ग्रेटर देन म्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शंस। ये दोनों भी तुम्हारे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शंस में आएगा, है ना, म्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस। गॉट इट। कौन सा टायर्स, हाँ, मूर कार के टायर्स भी क्या हो गया तुम्हारा, रोलिंग फ्रिक्शन, टायर रोल हो रहे हैं ना। हाँ, बट इफ सपोज इफ यू आर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगा रहे हो आप, तो ब्रेक लगा तो टायर रोल होते हैं क्या, नहीं, तो टायर घसरते हैं, जब घसर रहे हैं वो क्या है तुम्हारा, स्लाइड्स हो रहे हैं, है ना। वो तो खुद की जगह चेंज नहीं कर रहे हो, एज इट इज घसरना,
आगे जाने, ब्रेक लगाए सपोज आप, है ना, तो ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगा तो एज इट इज ऐसे पोजीशन जा रहा है आपका। हाँ, तो जो पोजीशन चेंज करा है उसे बोलते रोलिंग। अभी ब्लॉक ऐसा है ना, कभी कभी ये स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, तो इसको आप ढकल दिए तो क्या ब्लॉक भी क्या होता है हमारा, ये कोने टका टक टका ऐसे गिर गिर के जाता है ना, तो उसे बोलते हैं अपन रोल होना। हाँ, तो सीढ़ी से गिरते में कैसा घूमते घूमते जाता है, जब घूमते घूमते जा रहा है, जब क्या हो रहा है तुम्हारा वो रोल हो रहा है, बराबर। सीधा जाता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, एज इट इज, देखो ये एज इट इज जा रहा है ना, तो उसे क्या करना है आपको, स्लाइड। समझा डिफरेंस क्या है रोल और स्लाइड में? रोल है उसकी पोजीशन चेंज हो रहा है ना, पहले ये सरफेस अप साइड में था तो ये सरफेस नीचे जाएगा और वो ऊपर आएगा, इसका मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज होते जा रहा है, समझे। रोलिंग फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन में एरिया ऑफ कांटेक्ट इज रिमेन सेम। डिफरेंस समझा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट इज रिमेन सेम, वही कांटेक्ट तुम्हारा आगे कंटिन्यू चल रहा है। रोलिंग में एरिया बदल रहा है ना, पहले ये एरिया था, फिर ये कांटेक्ट एरिया था, फिर उसके बाद में ये एरिया उधर जाएगा, दूसरा एरिया लगेगा, दूसरा कंटिन्यू होते जाएगा, तो इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट इज कंटिन्यूसली गोइंग टू चेंज। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? स्टैटिक यानी नहीं गुजारना है, जगह छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स है, कौन से? एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग। स्लाइडिंग मतलब क्या है, जगह सरफेस एरिया इज रिमेन सेम, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट एरिया जो रिमेन सेम है, तो वो क्या है तुम्हारा स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। रोलिंग में एरिया सेम है क्या? नहीं, एरिया इज कंटिन्यूसली गोइंग टू चेंज। एरिया क्या हो रहा है तुम्हारा, ऊपर का एरिया अलग है, एरिया अलग है, एरिया कंटिन्यू चेंज हो रहा, उसे क्या कहोगे आप, रोलिंग फ्रिक्शंस, है ना। तो इसका ये क्या है तुम्हारा, म्यू ऑफ आर इज वेरी लेस, सबसे कम फ्रिक्शन किस में होगा आपका, रोलिंग फ्रिक्शन में। इसलिए क्या है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, तुम उसको रोल करते हैं, है ना, रोल करने से गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ब्रेक लगाए तो क्या होती है, गाड़ी का टायर थोड़ा स्लाइड होता है ना, तो इसलिए क्या इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोकने के लिए काम में आ रहा है, स्लाइड कर रहे हैं ना, इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, उससे ज्यादा है। रुकने के बाद में स्टैटिक, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी मूवमेंट में गाड़ी है, उसको फोर्स लगा तुम्हारे को आसान है उसको धक्का देना, पर रुकी वाली गाड़ी को धक्का देना क्या है आपको और मुश्किल है। स्टैटिक फोर्स को तुम्हारे को गाड़ी को मोशन में लाने के लिए क्या है, वी रिक्वायर द मैक्सिमम फोर्स। समझ में आ गया कंडीशंस? देखिए, तो उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शंस, तो कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं देखिए उसे। सबसे पहले कौन अफेक्ट कर रहा है इस पे, उसका सरफेस एरिया है ना, शेप एरिया है ना, कांटेक्ट, सरफेस एरिया कैसा है उसका, और किसके साथ कांटेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है उसका, है ना। ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है, स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, वो भी डिपेंड करेगा, है ना। कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल, कौन से मटेरियल के साथ उसका कॉन्टैक्ट हो रहा है, एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं इस पे। जैसे कि पानी से क्या होता है तुम्हारा, इसमें क्या होता है तुम्हारा, उसमें स्लिपरी आ जाता है ना। आप किचन में देखे होगे, घर पे कभी कभी फर्शी पूछते हैं, अपन पानी डालते हैं, पानी डालने से पहले क्या होता है तुम्हारा, स्लिप होता है। तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल जो बारिश गिरने से और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आपको अफेक्ट कर रहे हैं। लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, ऑयल गिर गया है ना, ऑयल गिर गया, कैरम के पाउडर लगाए, कैरम में पाउडर लगाए, देन इट विल बी अफेक्ट, देन नेचर ऑफ मटेरियल भी अफेक्ट, इट विल बी अफेक्ट नेचर एज वेल एज लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी अफेक्ट करता है उस पे, है ना, लुब्रिकेंट करता है। और कौन अफेक्ट करता है बोलिए, ऑयल, पाउडर, और वी कैन यूज लुब्रिकेंट, है ना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताया, इन्वायरमेंट में क्या होता है तुम्हारा, मड तैयार होता है, कीचड़, है ना, कीचड़ में आदमी क्या होता है, पैर स्लिप हो जाता है आदमी का, फिसल जाता है ना। फिसलना नहीं है अपने को, है ना, अपने को फोकस क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई में करना है, वेरी गुड। तो फिसलना नहीं है, समझे। तो क्या है, फ्रिक्शंस के फैक्टर्स आपको समझ में आए, कहाँ कहाँ आप ध्यान भटका गए तो क्या हो गया तुम्हारा, फ्रिक्शंस में आ जाएंगे, गिर जाओगे आप, है ना, इसलिए फोकस करना है आपको। एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स क्या है तुम्हारा, फोर्स और एडेसिव फोर्स इज सेम, वेरी गुड। फोर्स इज वन ऑफ द मोर फैक्टर, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स द ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम, वेरी गुड। दैट फोर्स, applied force is also affect as well as the shape of the object। शेप कैसा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, आपने उस दिन देखें कैसा, शिप का शेप कैसा होना चाहिए, फिश के जैसा स्ट्रीमलाइन, है ना। एरोप्लेन का शेप कैसा होना चाहिए, बर्ड के साथ, यानी स्ट्रीमलाइन शेप होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन तुम्हारा क्या हो गया,
रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये पे शेप पे भी, ऑब्जेक्ट की शेप पे भी इसमें फ्रिक्शन अफेक्ट करेगा, शेप पे करेगा, नेचर पे करेगा, जो वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन, समझे क्या? उस पे शेप पे भी अफेक्ट करेगा। शेप कैसा है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का अप्लाइड फोर्स, अब फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा। सरफेस उसकी इंटरलॉकिंग, ऑब्जेक्ट की इंटरलॉकिंग कैसी होती है, जो सरफेस एरिया है ऑब्जेक्ट का इंटरलॉकिंग कैसी होती है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट कौन सा तुम सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, उधर मत फ्रिक्शन रिड्यूस करो, है ना। तो उस पे नेचर, सरफेस एरिया, एज वेल एज शेप, एज वेल एज सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा तुम्हारा? ग्रेविटी आएगी, वाटर आएगा, है ना, कुछ लुब्रिकेंट्स आएगा, है ना। ये भी तुम्हारे फैक्टर्स क्या उस पे अफेक्ट करते हैं। गॉट इट? समझ में आया क्या क्या अफेक्ट कर रहा है? वेरी गुड। नाउ हियर, अभी यहां पे मैंने बता दो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, कंपैरिजन करना है आपको, लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा। अभी सपोज यही सेम क्वेश्चन होता था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, यहां पे होता था सपोज रोलिंग फ्रिक्शन, तो क्या आता था आंसर? मोर, है ना। इफ सपोज यहां पे आता था रोलिंग फ्रिक्शन, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? मोर, है ना। और यहां पे क्या आएगा अभी? लेस, समझे? तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको सबसे याद रखो। तो यहां पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द, सॉरी, तो इसमें क्या बोला? स्लाइडिंग बोला है ना, चलो कोई बात नहीं। ये इस म्यू क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या है तुम्हारा? रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ऐसे, ये ग्रेटर है, इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? सबसे कम है, समझे? रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन से, रोलिंग से स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा। समरी, तो आज क्या पढ़े अपन ने? फ्रिक्शन पर टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। सबसे पहले टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। अभी टाइप ऑफ फ्रिक्शन में अपन आज के दिन सिर्फ पढ़े कौन सा? सॉलिड के बारे में पढ़े। नेक्स्ट के टाइम पे आपने देखना है लुब्रिकेंट, लिक्विड के बारे में, एयर के बारे में, है ना, तो भी देखना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। सॉलिड में फ्रिक्शन कैसा होता है, सॉलिड में फ्रिक्शन कैसा होता है, लिक्विड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज गैस, वो तो तीन एयर फ्रिक्शन। ओके, लिक्विड फ्रिक्शन क्या बोलते हैं अपन? विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन इन एयर वी आर सीइंग एज द ड्रैग फोर्स। एयर क्या बोलते हैं अपन? ड्रैग फोर्स कहते हैं। ओके, एज वेल एज द स्टैटिक फ्रिक्शन देखे, लिमिटिंग फ्रिक्शन देखे। आज क्या देखे अपन ने? स्टैटिक फ्रिक्शंस, लिमिटिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। ओके, ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस देखे, है ना। उसमें कंपैरिजन देंगे, हाउ दे आर गोइंग टू एडजस्ट, है ना, हाउ दे आर गोइंग टू एडजस्ट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस आल्सो वी डिस्कस। ओके, लिसन, क्या देखे अपन? टाइप्स ऑफ टाइप देखे और रिलेशन देखे। F इज डायरेक्ट टू द नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारा? सेल्फ एडजस्टिंग। दोनों का रेशियो क्या है? F by N इज ऑलवेज कांस्टेंट। F by N is always constant. There are direct variations. Force when the force increases, at the same time the frictional force increases. In case of static, F net क्या होगा तुम्हारा? F net equals to 0। और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? F net is not equal to 0। काइनेटिक में दो टाइप के फ्रिक्शन है, कौन से? स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शंस। तो रोलिंग फ्रिक्शंस में क्या होता है तुम्हारा? म्यू आर, और यहां पे क्या होता है? म्यू एस। तो म्यू एस क्या होता है तुम्हारा? ग्रेटर देन म्यू आर। म्यू एस क्या होता है तुम्हारा? ग्रेटर देन म्यू आर। म्यू इज दे आर द कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। इसको यूनिट होगा कोई नहीं। फोर्स की यूनिट होगा न्यूटन। वो दोनों भी फोर्स डिवाइड जब हो गए, जब उसका यूनिटलेस क्वांटिटी इज नोन एज द। देन वन क्वेश्चन फॉर यू, क्या बोलता है देखो, you state the static frictions, statics, kinetic and rolling frictions with the example of each। आपको हर एक एग्जांपल बोलना है। देखो, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शंस। कौन सा एग्जांपल स्टैटिक फ्रिक्शंस का? पुशिंग अ बॉल, बॉल पुश तो बॉल नहीं आगे जाएगा। वॉल, वेरी गुड, पुशिंग अ बॉल, करेक्ट, है ना। और पुशिंग अ वॉल बट वॉल रिमेन्स स्टेशनरी, वो मेंशन करना पड़ेगा आपको, है ना। आप वॉल पुश कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स द
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन्स ऑन द सेम पोजीशन। इसका मतलब क्या होगा, एफ नेट कितना होगा यहां पर 0, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी। तो वो कंडीशन क्या होगी तुम्हारी, स्टैटिक फ्रिक्शन। इन दैट केस द अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों भी क्या हो गए तुम्हारे, सेम हो गए। गॉट इट? द बोथ द फोर्सेस आर द सेम, वी कैन से द ऑब्जेक्ट विल बी द स्टैटिक। अभी काइनेटिक में दो पार्ट है, काइनेटिक के पार्ट कितने थे, दो, एक था रोलिंग और दूसरा क्या था, स्लाइडिंग। काइनेटिक का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट विल बी ना मोशन, ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में आ गया है, ऑब्जेक्ट उसी जगह छोड़ दे रहा है ना। तो काइनेटिक के दो पार्ट है, रोलिंग काइनेटिक का ही पार्ट है एक्चुअली, द रोलिंग और स्लाइडिंग भी काइनेटिक का पार्ट है। स्लाइड हो रहा है, जगह छोड़ दे रहा है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एफ नेट क्या होगा तुम्हारा, इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, हियर नो मोशन। यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, करेक्ट है। तो यहाँ पे रोलिंग में क्या हो रहा है, अभी स्लाइड में क्या हो रहा है, द सरफेस एरिया रिमेन्स द सेम, कॉन्टैक्ट एरिया विल बी रिमेन द सेम। स्लाइड में क्या हो रहा है, सब स्लाइडर है, तो स्लाइडर में क्या हो रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन द सेम। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बदल रहा है क्या आपका ऑब्जेक्ट का, नहीं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स द सेम एंड ऑब्जेक्ट विल गोइंग टू डिस्प्लेस। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, बट जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इंटरेक्शन है, तो वो क्या है, एज इट इज है, उसमें उसके साथ में ही क्या ऑब्जेक्ट तुम्हारा मूव हो रहा है ना, उसे क्या कहते हैं अपन, स्लाइड होना। बट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, ऑलवेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू चेंज। यहाँ पे ये एरिया लगा है, फिर बाद में थोड़ी देर दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, चौथा लगेगा, बोल कंटिन्यूसली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू चेंज। समझ में आ गया? इसमें सबसे आसान, सबसे कम फ्रिक्शन किसमें है, रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन है, सबसे ज्यादा किसमें है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है, घूम रहा ही नहीं है ऑब्जेक्ट, है ना। स्लाइडिंग, अपन रोलिंग को ब्रेक लगाए तो उसमें कन्वर्ट किसमें होता है, स्टैटिक में। पहले अपन गाड़ी को ब्रेक लगाए, गाड़ी चल रही है अपनी, व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, तुम्हारा व्हील जाम हो जाएगा, देन थोड़ा देर स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड होने के बाद में थोड़ी देर के बाद में वो रुक जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें है तुम्हारा, स्टैटिक में, उससे थोड़ा कम स्लाइडिंग में, और सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें तुम्हारा, रोलिंग में। बट फ्रिक्शन इज नेसेसरी। by this way we end up the today's sessions. If anyone having the doubts in today's topic, please ask any times and clear doubts. किसको टॉपिक कोई डिफिकल्टी है क्या आज के टॉपिक में, या सेल्फ एडजस्टिंग यानी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन तुम्हारा ऑब्जेक्ट पर अपन फोर्स लगा रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है उतने। अभी सपोज मैंने चेयर को फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, चेयर हल रही क्या, नहीं हल रही, 2 न्यूटन लगा, हल रही क्या, नहीं हल रही। जब तक मैं फोर्स लगाता वही टाइम पे सेम क्या है, तुम्हारी चेयर भी अपोजिंग फोर्स लगा रही है, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग। वही टाइम पे क्या, दोनों का रेशियो क्या है तुम्हारा, सेम है ना, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा तुम्हारा, सेम है, उसे बोलते सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। गॉट इट? और इन डाउट? हाँ, स्टैटिक में वो दोनों भी कंपैरिजन सेम चलते रहेगा, उसका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, दोनों में भी एडजस्टमेंट सेम रहेगा। Any doubt in the today's topic? Got it? Shall we end today's session then? Yes, thank you.